Okay, let's start with today's new concept, marketing mix. Okay. Now before starting this concept, I went through the entire chapter. ठीक है? There's this one question, functions. इसके पहले ये marketing mix के पहले there is this question, functions of marketing. Okay. So you consider this one question. Okay. Consider this one question and this one, marketing mix. ये दो क्वेश्चंस ये चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. द क्वेश्चन बिफोर मार्केटिंग मिक्स एंड मार्केटिंग मिक्स, दीज टू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर आर क्वाइट इंपॉर्टेंट. ठीक है. Okay, let's go through this one. Today we'll understand what is marketing mix. Okay, in simple words, the marketing mix is putting the right product at the right time at the right price in the right place. That is marketing mix. मतलब in short कहने का क्या मतलब है, जहां पर डिमांड ज्यादा है वहां पर ही आप वो प्रोडक्ट को लेके आ रहे हो. लिखा क्या है, पुटिंग द राइट प्रोडक्ट एट राइट टाइम at the right price and at the right place. All the three things are important to understand the concept of marketing mix. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको एग्जाम्पल थ्रू अगर हम समझते हैं, you remember the time when there was hoarding of Maggie, correct? So if there is this one seller, ठीक है, जो मैगी आज अब वो टाइम पर भी बेच रहा था. ठीक है. So people got to know about that and people, just rushed into that store and got Maggie. And even though if the price is a little more, they did not hesitate to pay it, क्योंकि उन्हें पता था कि बाकी जगह तो मिल भी नहीं रहा है. So better take it from here. So exactly वो पीरियड में जहां पर वो प्रोडक्ट की मार्केट में कमी है और वो प्रोडक्ट अगर आप अपने शो में लेके आते हो, when you start, so obviously there would be high rise in the demand of that product. ठीक है. So this is what putting the right product. जब होर्डिंग मैगी की चल रही है, so you have to choose the right product. अच्छा, this hoarding is just a basic example. ठीक है. At the right time, यहाँ पर जो मैगी बेच रहा था उसके पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी. करेक्ट. So the time which that was very crucial and at the right price and at the right place ultimately. ठीक है. आगे पढ़ो क्या लिखा है. It is one of the important tools of marketing. The 4 P's. अब यहाँ से शुरुआत होता है मेन आंसर. The 4 P's of marketing mix were introduced by McCarthy in 1960. It further extended by Booms and Bittner in 81 by adding 3 new elements. मतलब टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 7. करेक्ट. 7 में से पहले कितने आए थे, 4, और बाद में कितने आए, 3. ये जो 4 थे वो कब आए थे, in 1960. In 1960 and these 3 introduced in 1981. Correct. So there are in short 7 principles of marketing mix. ठीक है, which we are going to study now. 7 ऐसे पकड़ के चलो that there are 7 P's. Okay, there are in total 7 P's. देखो यहाँ पर लिखा है 7 P's. There are 2 types of marketing mix, product marketing and service marketing. So हमने ये जो 7 elements को classify किया 4 and 3. So ये जो 4 है इसको हम कह रहे हैं product marketing mix और ये जो 3 है इसको हम कह रहे हैं service marketing mix. Okay, so understand this thing.
कि टोटल देयर आर 7 P's, ओके, उसमें से फर्दर डिवाइड हो रहे हैं 4 और 3। ये जो फर्स्ट 4 है इसको हम कह रहे हैं प्रोडक्ट मिक्स, और जो बाकी के 3 हैं दैट इज कॉल्ड एज सर्विस मार्केटिंग मिक्स, ओके। So first we'll understand these 4 elements and then we'll see these 3, ठीक है। Let's read the first 4. First 4 देखो यहाँ पर क्या है, they are product, price, place, promotion, ठीक है। We studied of the 4 P's. तो 4 P's कौन से हैं? Product, price, place and promotion. ये 4 P's को 3 P's के साथ कंफ्यूज मत करना, ठीक है। यू कैन नॉट इंक्लूड दीज 3 P's इनटू दिस। ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। ओके, फर्स्ट क्या लिखा है यहाँ पर? प्रोडक्ट। लेट्स रीड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब एक्चुअल सब्जेक्ट मैटर की बात कर रहे हैं, एक्चुअल कमोडिटी की, ओके। प्रोडक्ट रिफर्स टू द गुड्स और सर्विसेज दैट आर ऑफर्ड टू द कस्टमर्स फॉर सेल and are capable of satisfying the need of the customers. Easy है, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, the product can be intangible or tangible. तो नेचर कोई भी हो सकता है, tangible भी हो सकता है, intangible भी हो सकता है। आगे as it can be in the form of service or goods. अच्छा, अगर प्रोडक्ट की बात की जाए तो प्रोडक्ट मतलब सिर्फ गुड्स ही नहीं होता है, प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स सर्विसेज, करेक्ट। तो अगर गुड्स है तो ये क्या होंगे? टैंजिबल, और अगर सर्विसेज है तो ये क्या होंगी? इनटैंजिबल। व्हाट इज टैंजिबल? यू मस्ट हैव ऑफ कोर्स स्टडीड इन अकाउंट्स। टैंजिबल इज समथिंग व्हिच यू कैन सी, टच, फील, करेक्ट। सर्विसेज को आप टच नहीं कर सकते हो, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज इनटैंजिबल। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग क्या है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मतलब ऐसा मत समझना कि सिर्फ गुड्स की बात की गई है, इट इज गुड्स प्लस सर्विसेज, ओके। सो if I am giving you services, so this platform of teaching, the entire communication would be considered into product, ठीक है। The business needs to decide right type of product through extensive market research. अच्छा, just before starting with your lecture, I read the news. आपने भी शायद से सुना होगा, I don't know. Tell me if you have heard it. I just saw the picture. अब ये PUBG वगैरह बैन हो गया है, correct? So Akshay Kumar has started, or it's maybe coming soon, something like that. He started with Fauji. ऐसा कुछ तो नाम है, इट्स अ गेम, करेक्ट। फियरलेस एंड यूनाइटेड, ऐसा कुछ तो है इसका नाम, राइट। तो नाउ इट इज सच अ राइट टाइम टू इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर गेम। मतलब वो पबजी बैन हुआ एंड यू कम अप, आई डोंट नो वेदर इट्स अ सिमिलर गेम और नॉट, शायद से आइडिया वगैरह वही रहेगा और देन स्पेसिफिकेशंस माइट चेंज। तो क्या लिखा है यहाँ पर? द बिजनेस नीड्स टू टेक राइट टाइप थ्रू एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च। अब ये पबजी बैन हो गया, सो इट वाज ऑल ओवर द इंटरनेट, करेक्ट। सो आई डोंट थिंक दैट यू नो इससे बेटर कोई और टाइम रहता टू लॉन्च सच अ न्यू गेम। सो इट्स डेफिनेटली अ मास्टर स्ट्रोक। हाँ, ये सीओडी ने तो ऑफ कोर्स टेक ओवर किया है, नो डाउट, but then there are people who are just addicted, rather. Okay, so we were discussing about the market research. Okay, आगे देखो क्या लिखा है? Success of business depends upon the impact of product in the minds of the customers. ठीक है, ये तो हमें खैर पता ही है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रोडक्ट के बाद क्या आ जाता है? प्राइस, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। Okay, the price of the product is basically the amount that a customer pays for the product. ठीक है, price plays an important role in creating demand. The business needs to take utmost care to decide the price of the product. देखो इसलिए कहते हैं कि ऐसा ना हो कि प्राइस कुछ ज्यादा ही हाई हो, है ना, so that the common people can't afford it. इसलिए
आपने इकोनॉमिक्स जो डिमांड एंड सप्लाई के कर्व्स होते हैं एंड वेयर दीज टू कर्व्स मीट, दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पॉइंट, करेक्ट? सो दिस पॉइंट, सपोज यहाँ पर क्वांटिटी है, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर क्या होता है, प्राइस होता है, करेक्ट? सो दिस इज प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी में इतनी प्राइस पे बिकना चाहिए। सो वेयर द डिमांड एंड सप्लाई कर्व मीट्स, दैट पॉइंट वुड बी कंसिडर्ड एज द परफेक्ट प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। क्योंकि आप जो मेजर जो दो फैक्टर्स हैं, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, आप उसको कंसिडर कर रहे हो, सो यू नो प्राइस इज समवॉट नेक्स्ट टू एक्यूरेट। बट अगर आप देन अगेन when you consider the product such as superior products, rather I would just take an example of an iPhone, ठीक है? अब सप्लाई में तो कोई कमी नहीं है, ठीक है, सप्लाई तो हो रहे हैं, डिमांड भी है। अब अभी आपको तो पता ही होगा, सपोज देयर दिस न्यू लॉन्च ऑफ एन आईफोन विच इज से ऑफ 1 लाख, ठीक है? अब कॉमन मैन कैन परचेस इट, ठीक है? बट मान लो कि अगर ये 1 लाख की जगह एक और नया वर्जन आता है विच गोज अप टू 130, शायद होगा भी, आई एम जस्ट नॉट अवेयर, सो आई एम जस्ट टेकिंग अ रफ एग्जांपल, इट गोज टू 1,30,000। सो सी, कहीं ना कहीं आईफोन वालों को भी पता है दैट मे बी दे आर चार्जिंग टू मच, बट देन अगर लोग खरीद रहे हैं यानी डिमांड है, ठीक है? सो इफ देयर आर, अगर उनका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, इफ जो उनका टारगेट है, जो उनका एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, अगर वो अचीव हो रहा है, सो देन दे विल नॉट थिंक ऑफ यू नो इवन रिड्यूसिंग दिस प्राइस। व्हाई विल दे थिंक? जब उनके टारगेट्स, उनका जो टर्नओवर है, अगर वो अच्छे से अचीव हो पा रहा है, सो देन दे विल नॉट थिंक ऑफ यू नो रिड्यूसिंग द प्राइस फॉर इट। सो सुपीरियर गुड्स में कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई का फोर्स इतना ज्यादा नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि सप्लाई तो हो ही रहा है, सप्लाई में तो कोई कमी नहीं है। सो आई थिंक सुपीरियर गुड्स में देन फिर वहां पर ना ब्रांड आ जाता है, रेप्यूटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, गुडविल का पूरा सिस्टम आ जाता है। सो देन इट वेरीज फ्रॉम द नेचर ऑफ गुड्स, ओके? और यहाँ पर तो इंडिया में है, खैर यूएस में तो आप जिसको देखोगे उसके पास आईफोन ही होगा। सो देयर इज अ गुड मार्केट, ठीक है? तो वहां पर तो प्राइस कम करने की तो खैर सोचेंगे भी नहीं। ओके, टू हाई प्राइस may affect the demand of the product and pricing too low may affect the profitability। अगर आप दाम कम कर लेते हो तो इनडायरेक्टली वो आपके ऊपर अफेक्ट करेगा एज अ बिजनेस, द इंटायर बिजनेस, क्योंकि आप फिर आपका टर्नओवर कम होगा, आपके सेल्स कम होंगे, प्रॉफिट कम होगा, राइट? शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलेगा, सो द चेन ऑफ लाइन गोज डाउनवर्ड्स। व्हाइल डिसाइडिंग द प्राइसेस, द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर्स आर टू बी कंसिडर्ड। मतलब क्या? ये कितना वर्थ है, कस्टमर्स को कितना ज्यादा सेटिस्फाई होगा, ये सब चीजों को आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है? उसकी अल्टीमेट वर्थ, यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है, वैल्यू। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और ये कितना यूजेज देगा। द वर्ड यूटिलिटी इज रिटन, यूटिलिटी का अल्टीमेट मतलब क्या होता है कि हाउ मच यूजेज। अगर कोई प्रोडक्ट है जो मल्टीपर्पस है, जो बहुत सारे उसके यूजेस हैं, है ना, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसका प्राइस हाई रहेगा, बिकॉज उसका कोई एक यूजेज नहीं है, इट सर्व्स मल्टीपल पर्पसेस, करेक्ट? So these two factors को उन्होंने ज्यादा हाईलाइट किया है, वैल्यू एंड यूटिलिटी। वैल्यू मतलब वर्थ, यूटिलिटी मतलब यूजेज, ठीक है? नेक्स्ट देखो, प्लेस। प्लेस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। Distribution is very important part of the marketing. Marketing, making a right product at a right price is not enough. Businessman needs to make the product available to customers at the right place too. तो यहाँ पर लोकेशन की बात की गई है. Business needs to distribute the product in a place that is accessible to potential buyers. It covers location, distribution channels, way of delivering the product to the customer. ठीक है? Better the chain of distribution, higher the coverage of the product. मतलब क्या?
फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मैकडोनल्ड्स, ठीक है। अब हर एरिया में उसका ब्रांच मिलेगा आपको, हर एरिया में उसका फ्रेंचाइजी है। पकड़ लो अगर कुछ ऐसे 2-3 एरियाज हैं जहां पर मैकडोनल्ड्स नहीं है, सो दैट मीन्स दे आर नॉट हैविंग अ हायर कवरेज, करेक्ट। इसलिए ही क्या बोल रहे हैं, दैट मेक श्योर दैट योर बिजनेस रीचेस टू द कस्टमर्स। कस्टमर्स को ज्यादा एफर्ट्स ना लेने पड़े टू कम टू योर बिजनेस, इट शुड बी वाइस वर्सा। द बिजनेस should provide services to the customers at the doorstep. अब doorstep मतलब ऐसा नहीं कि बस just घर के बाहर, doorstep does not actually mean that, but it means कि the business should travel to the customers rather than the customers taking efforts to go to the business. ठीक है, जैसे अब बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्रिएट हो गए हैं, द वेबसाइट्स, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, राइट। सो फिर अगर उसके फिर अलग एडवांटेजेस आ जाते हैं कि आपका टाइम बच जाता है, राइट। फिर वो एफर्ट बार्गेनिंग का कोई सीन नहीं होता है, बिकॉज इट्स अ फिक्स प्राइस। आप कहाँ डिजिटल में बार्गेन कर सकते हो, राइट। ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। देन बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल एरा मेनी पीपल आर प्रोन टू ऑनलाइन शॉपिंग, है ना। कुछ कुछ तो ऐसे लोग हैं जो तो मतलब सब कुछ ऑनलाइन ही मंगवाते हैं, राइट, फ्रॉम शूज टू अपैरल्स टू ज्वेलरी and everything and so on and so forth. So for such people who are, who are having a hectic schedule, or they don't like to travel, that much, at least to get clothes or anything. अब यहाँ पर तो एसी से लेके घर का कोई भी फर्नीचर और वगैरह जो भी है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, ठीक है। सो यहाँ पर प्लेस की बात की गई है, बट वी आर स्पीकिंग ऑफ द डिजिटल स्पेस, ठीक है। यहाँ पर ऑल्दो मेंशन नहीं है, बट बेटर द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जितने ज्यादा चैनल्स ओपन होंगे, जितने ज्यादा फ्रेंचाइजीज स्टार्टअप होंगे, हायर द कवरेज ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब क्या डायरेक्ट रिलेशन है ना। आप हर एरिया में स्टार्ट कर दो मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज वगैरह, इट्स हायर द कवरेज, ठीक है। ऐसा ऐसा नहीं होगा कि you meet someone and the like rarely होगा, I'm not saying कि होता ही नहीं होगा, but I don't think so. Like at least me, I have never met a person who would say I have never been to McDonald's, correct, or never been to KFC या जो भी है. So there is a reach, अच्छा खासा coverage है business का. नेक्स्ट देखो प्रमोशन. अब कल हमने बात की थी एडवर्टीजमेंट की, करेक्ट. आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ अ स्टेशनरी शॉप कि उनके पास हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, बट दे आर नॉट टेकिंग मोर इनिशिएटिव्स टू कम अप एंड एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स. तो वहां पर फिर थोड़ा डिक्लाइन हो जाता है. लेट्स रीड. प्रमोशन इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग as it creates brand recognition and sales. Promotion is a tool of marketing which helps to publicize the product to the customers. It helps to convey product features to the potential buyer, inducing them to buy. ये सबसे important word है, inducing them to buy it. मतलब क्या, आप ऐसा advertise करते हो, इतने features दिखाते हो अपने product का, that you are actually attracting the customers to come to your place and buy the product. ठीक है. Induce का मतलब क्या होता है? To attract. Promotion mix includes tools such as advertising, marketing, sales promotion, personal selling, that etc. Combination of promotional strategies depend upon budget. अच्छा, यहाँ पर फिर बजट का रोल इंपॉर्टेंट है कि कितना आपका बजट है. ऐसा ना हो कि आपने जो कैपिटल गैदर किया है टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, आप वो पूरा कैपिटल मार्केटिंग में लगा देते हो, आप पूरा वो कैपिटल प्रमोशन में लगा देते हो. ऑल्सो आई एम श्योर कि आपका जैसे ही 10th स्टैंडर्ड खत्म हुआ होगा, सो एग्जैक्टली आउट ऑफ योर सेंटर्स आपको छोटे छोटे पैम्पलेट्स मिले होंगे. Yeah, I'll talk about that as well. So you would have got these small pamphlets, ठीक है. क्लासेस के नाम बताए होंगे, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कॉलेजेस का वगैरह वगैरह होगा, ठीक है. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट. नाउ डाउट अबाउट दिस OnePlus. ने कोई ओके. So a combination of promotional strategies depend upon budget.
message business wants to communicate and the target market. तो आपका जितना बजट है, हाँ, जैसे आई वाज स्पीकिंग अबाउट दिस एग्जांपल, कि ऐसा ना हो कि आपने जो कैपिटल गैदर किया है टू इन्वेस्ट इन योर ओन बिजनेस, आप पूरा का पूरा पैसा आपने प्रमोशन में लगवा दिया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, करेक्ट। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द अबव 4 P's ऑफ मार्केटिंग आर एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट मार्केटिंग। ये जो हमने 4 P's पढ़े थे ना, दिस इज प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स, ओके। ये जो 3 P's हैं, दिस इज सर्विस मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट व्हाट आर प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स, आपको सिर्फ 4 P's लिखने हैं। अगर आपको सर्विस का पूछा जाता है देन यू हैव टू राइट ओनली 3 P's, ओके। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दीज 3 पीपल। नाउ यहाँ पर पीपल का मतलब सिर्फ अच्छा, मेरी आवाज आ रही है अभी बरोबर से? टेल मी इन द चैट बॉक्स। सो दिस पॉइंट पीपल, यहाँ पर पीपल का मतलब सिर्फ कस्टमर्स नहीं होता है, इट इंक्लूड्स ऑल द पीपल एसोसिएटेड इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। लिखा है यहाँ पर, देखो है, inside and outside the business have directly indirectly influenced the business। मतलब यहाँ पर साइड वाले कौन होंगे? जो एम्प्लॉइज होंगे, करेक्ट। पीपल कंप्राइज ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स that play an active role in offering the product. The people include employees who help to deliver services to the customers. So employees कौन हो गए? Inside, ठीक है, और customers कौन होंगे? Outside. Right people at right place add value to the business. Business is necessary to recruit right people, train them. सबसे important part क्या है? Training. Develop their skills and retain them. अगर आप ये यहाँ पर जो BMW का इतना बड़ा है यहाँ पर, इफ यू इट्स ऑन NG रोड, ठीक है, सो वहां पर there is not only one salesperson who is handling the entire, there are so many cars over there, correct। every person, या अगर आप विजय सेल्स का एग्जांपल ले लेते हो, कितने सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, राइट फ्रॉम यू नो जो भी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमको घर पे लगते हैं, फोन, लैपटॉप, ग्राइंडर, मिक्सर, जो भी वगैरह है, वो आजकल तो ऑटोमेटिक ये भी आ गया है, गैस वाला, ठीक है। सो फ्रिज, तो नॉट ऐसा नहीं होता है कि देयर आर ओनली 2 पीपल हु आर देयर फॉर फ्रिज, ठीक है। अगर कस्टमर्स आ जाते हैं फ्रिज देखने के लिए तो सिर्फ ये दोनों ही गाइड करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो मतलब अगर ऐसा होगा, एंड इफ देयर आर, तो कंसिडर इफ देयर आर 3 families और 3 to 4 families who are here to look for a fridge, तो वो जो थर्ड फैमिली है उसको रुकवाएंगे क्या कि भाई आप रुको, ऑलरेडी अंदर कस्टमर्स हैं, so there is nobody to guide you, no, right। every person working in Vijay Sales has a good idea about all the products। शायद से डिटेलिंग नहीं होगा, सपोज फ्रिज का जो डिटेलिंग है, फ्रिज का जो डिपार्टमेंट है, उसके लिए आपने 12 लोगों को रिक्रूट कर लिया, बाकी के जो सपोज देयर आर मोर 30 पीपल वर्किंग ओवर देयर, आई एम नॉट सेइंग कि 30 को इन डिटेल नॉलेज होगा फ्रिज का, बट एटलीस्ट दे वुड हैव अ बेसिक आइडिया टू स्टार्ट, and हो सकता है that later they hand over to a person who is an expert in the fridge department। so all the 42 people, 42 employees working in Vijay Sales, they have a good idea, they have a good basic idea about all the products kept in Vijay Sales, ठीक है। so इसलिए क्या लिखा है, there should be right people and you should train them, develop their skills and retain them। मतलब क्या, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, देखो there is this person who is showing me a fridge in Vijay Sales, ठीक है, तो उसका एटीट्यूड ऐसा ना होना चाहिए कि यार सी ये कस्टमर, ये अगर एक कस्टमर को फ्रिज लेना है तो ये ले, नहीं लेना है तो मत ले, मेरा थोड़ी कुछ जा रहा है, आई एम नॉट द ओनर ऑफ Vijay Sales, आई एम जस्ट अ बेसिक एम्प्लॉय। सो दिस कस्टमर इफ ही वांट्स टू, तो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लूंगा टू इंड्यूस हिम टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या लिखा है, डेवलप देयर स्किल्स एंड रिटेन देम। सो उनको ऐसा एटीट्यूड क्रिएट करवाओ while they are training
So they should feel included in the part of the, they should be included in the organization itself. ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार सी लेना है तो ले, नहीं लेना है तो मत ले. I will not take extra efforts to, you know, to ask the customers to take it. It's a good product. मैं उसको और 20 फीचर्स नहीं बताते बैठूंगा, है ना. तो ये माइंडसेट फिर गलत हो जाता है. नेक्स्ट देखो, प्रोसेस. Process refers to the steps involved in delivering products and services to the customer. Process are, yeah, they get commission, correct. हर कस्टमर के बाद उनको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ परसेंटेज वाइज उनको कमीशन मिलता है, ठीक है. इट्स इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज. Okay, processes are important to deliver quality services. Good process helps to ensure standard to the customers. में actually mentioned, but process ऐसा ही होगा that a customer first lands up to the shop, ठीक है, he purchases the product. बाद में ये जो शॉप का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो ये प्रोडक्ट को कस्टमर के घर पे जाके इंस्टॉल कर, ठीक है, उनको डेमो देगा and he will complete all the additional formalities which are required. So process is basically that start point from where the customer purchases the product till it reaches to the customer physically. तो ये जो ड्यूरेशन है जहां पर आप ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूड करते हो, ठीक है. सो द विजय सेल्स यू नो ऑर्गेनाइजेस, अरेंजेस कि भाई ये पर्टिकुलर ये जो फ्रिज है, अब कस्टमर आके फ्रिज लेगा, बुक करेगा तो वो लेके जाएगा क्या अपने साथ? नहीं ना. ही वुड आस्क विजय सेल्स, ही वुड गिव हिज एड्रेस और फिर विजय सेल्स खुद से होके उसके घर पे डिलीवर करवाएगा, करेक्ट. सिंपल सी बात है. सो विजय सेल्स हियर हैज टू टेक in consideration many things such as safe custody, correct, good transportation, a good representative to go at his place and install the fridge, give out the additional features, demo देगा जो भी XYZ required है, ठीक है. तो this is the start and the end point when they talk about process. तो आप ये example खैर लिख सकते हो, you can create the example. और last आता है फिजिकल एनवायरनमेंट. ये देख लो क्या लिखा है इसमें. Physical environment refers to marketing environment wherein the interaction between the customer and firm takes place. Since services are intangible in nature, service providers try to incorporate certain tangible elements into their offering to enhance customer experience. ये important point है, इसको underline करो. अब सुनो, I'll give you 2 examples for this. Let us talk about teaching. ठीक है. Teaching is a intangible. It's intangible, correct? Why? Because teaching is considered to be a service, correct? But हमारा class established है ना. हमारा class एक physical location पर exist करता है. So there is some kind of physicality included in the part of teaching. Teaching एक service है, पर at least आपको class तक तो आना पड़ेगा, correct? And class is tangible. Class ये जो location, जो पूरा infrastructure बना हुआ है, that is tangible. But the services which are being delivered over there, that are intangible, correct? देखो यहाँ पर लिखा क्या है. Since services are intangible, करेक्ट. हमने एग्जांपल लिया टीचिंग का. सर्विस प्रोवाइडर्स ट्राई टू इनकॉर्पोरेट सर्टेन टैंजिबल एलिमेंट्स. तो यहाँ पर सर्टेन टैंजिबल एलिमेंट्स क्या हो गए? क्लास का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है. तो क्लास तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पर फिक्स्ड है, विच इट एग्जिस्ट्स एंड इट इज टैंजिबल इन नेचर, ठीक है. वन मोर एग्जांपल आई गिव यू. ये जो सर्विस है shaadi.com का, ठीक है. Now basically what is it? It's basically an app, ठीक है. अब I am not particularly aware कि अब क्या actually में है, but consider the knowledge, the example which I'm giving you, that is say 5 years from now.
अब उसमें ये जो शादी.com है उसमें होता क्या है, देयर इज दिस पैकेज ऑफ गोल्ड, ठीक है, या गोल्ड पता नहीं उसको क्या प्रीमियम बोलते हैं, आई एम नॉट पर्टिकुलरली अवेयर, इन दोनों में से कुछ तो वर्ड है। सो देयर इज शादी.com तो पूरा ऐप हो गया, ठीक है, बट देयर इज दिस ऑफिस ऑफ शादी.com वेर यू हैव टू गो एंड आपको अपना जो पैकेज है उसको अपग्रेड करवाना पड़ेगा टू प्रीमियम। सो बेसिकली यू आर पेइंग देम, ठीक है, वो तो ठीक है, पे वगैरह का तो ठीक है, बट नाउ इन दिस एग्जाम्पल इफ यू नोटिस one part of the example speaks about intangible services and one part of the example speaks of tangible services। मतलब क्या, जो ऐप है that is all intangible, करेक्ट, जो सर्विस आपको ऐप से मिल रही है दैट इज ऑल इंटेंजिबल, बट यू हैव टू गो इनटू देयर ऑफिस टू अपग्रेड योर प्लान टू प्रीमियम और यू हैव टू पे सम मनी टू देम सो दैट आपको एडिशनल फीचर्स का ऑफर मिल जाए। अब शायद ये भी ऑनलाइन होता होगा, आई डोंट नो, बट 5 years फ्रॉम नाउ यू हैड टू गो टू देयर ऑफिस, ठीक है, एंड पे देम द मनी, और फिर वो आपका वो पैकेज कुछ प्रीमियम करवा लेते हो समथिंग लाइक दैट। सो यहाँ पर जो उनका ऑफिस है दैट कम्स इनटू द टैंजिबल सर्विस, ठीक है। सो रिमेंबर दीज टू एग्जांपल्स, एक तो क्लास का और एक दिस वेबसाइट का। आगे देखो क्या लिखा है, थ्रू फिजिकल एग्जिस्ट एविडेंस कस्टमर्स नो ब्रांड लीडर्स इन मार्केट, ठीक है, कहीं ना कहीं शादी.com का एक ऑफिस है, ठीक है, सो एक उनका ना ब्रांड पता चल जाता है बाय मियर फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस अफेक्ट्स द कस्टमर्स सेटिस्फैक्शन, है ना, ऐसा तो नहीं होगा, देखो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप ऑफिस में जाके पैसे दे के आते हो तो आपको खुद से सेटिस्फैक्शन मिलेगा, है ना, राइट, दैट यू हैव पेड द मनी, तो अब आपको उतना वैल्यू मिलेगा, ठीक है। सो कहीं ना कहीं देयर इज अ सेटिस्फैक्शन, इट इंक्लूड्स लोकेशन, जैसे मैंने आपको ऑफिस का एग्जांपल दिया, लेआउट, इंटीरियर डिजाइन, आई स्पोक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ड्रेस ऑफ द स्टाफ एंड हाउ दे एक्ट, वेटिंग एरिया एटसेट्रा। यहाँ पर मतलब ये जो लास्ट लाइन है, दे आर एक्सप्लेन्ड यू द एंटायर फिजिकल एविडेंस ऑफ अ ऑफिस और ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसका वेटिंग एरिया कैसा होता है, हाउ दे एक्ट, जो वहां पर स्टाफ है, ड्रेस ऑफ द स्टाफ, करेक्ट। अब अगर आप इसमें जाते हो पीएन कार्ड, ठीक है, पीजी जो भी है, वहां पर all the people, all the staff, they have the similar dress, all the ladies they have a purple साड़ी, ठीक है, and men का भी something, it is I think white shirt है कुछ तो something like that, but they have a dress code, they have a proper uniform for it, ठीक है। So these things matter when it comes to part of marketing. Why is this hanging down? Okay, we'll be stopping here for today. Now one thing which